Hello students, today in this video we'll do very wonderful poem Father to Son of Elizabeth Zenning, and this is for class 11th. And why this poem is so wonderful, why it is so unique, because it highlights the actual relation of father and son in today's era, right? Earlier the relation was very sweet. Earlier the relation between father and son was very sweet. They used to live in the same family, they used to share their problems, their happiness. But now, through this poem, the universal feeling has been shown to everybody that in this present situation, there is a generation gap in families. So there is a difference between father's age and son's age, and there is a generation gap. So thinking differs. So fathers are not able to understand the desires of their son, the aims of their son, the longings of their son, what their sons want in their lives. So fathers are not able to understand this. So this universal feeling has been presented in this poem, that there is a generation gap between son and father, and that's why father is very sad. He doesn't want to let his son go out of his family. He wants to have the relation of love, care, sharing, like that. So we'll read this poem in detail, line wise. We'll understand this poem more better, and then we'll do literary device as well, and a few questions also, and at last I'll tell you message also, right? So, and if you don't have books, you can pause the video, just go bring your books, open the textbook, and line wise we'll enjoy this poem, right? Father to son. So this poem, in this poem we are going to see the feeling of father. पापा के जो भाव हैं उनको जानेंगे, पापा की जो पीड़ा है उसको जानेंगे, पापा की पीड़ा क्यों है इसको जानेंगे, और पापा जी क्या चाहते हैं इसको जानेंगे. सो एक यूनिवर्सल फीलिंग है कि जितने भी फादर्स हैं उनका उनके बेटे लोगों के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ, मतलब अपने बच्चों के साथ एक जनरेशन गैप है. वो उनके थिंकिंग को नहीं समझ सकते, उनके व्यूज़ को नहीं समझ सकते, उनके विचारों को नहीं समझते, उनकी विशेस को नहीं समझते. तो देखिए कैसे है इस पोएम में आगे. I don't understand this child, though we have lived together now. I means this poet or father. ठीक है, I is for the poet or the father. So father is saying, मैं इस बच्चे को नहीं समझता, जबकि हम सालों से इस घर में रह रहे हैं. बहुत सालों से हम इस घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आज इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ. आज मैं अपने इस बेटे को नहीं समझता, इसकी इच्छा क्या है, इसके सपने क्या है, इसके दिल में क्या चल रहा है. In the same house for years, I know nothing of him. कहते इसी साल में, इसी घर में हम बहुत सालों से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आज मैं अपने इस बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता. मैं नहीं जानता ये कहाँ जाता है, मैं नहीं जानता इसके दोस्त कौन है, मैं नहीं जानता ये जिंदगी में क्या करना चाहता है. I know nothing of him, so try to build up a relationship from now, from how he was when small. Yet I have killed. अब ये कह रहा है कि जब वो छोटा था तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था. जब बच्चा छोटा था तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. मेरा बेटा मुझसे हर बातें शेयर करता था, मेरा बेटा मुझे हर चीज़ें बताता था, उसको क्या चाहिए, उसको क्या दुख है, उसको किस बात का डर है. लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारे बीच में ऐसा क्या हो गया. अब मैं अपने इस बेटे को क्यों नहीं समझ सकता. हम एक ही घर में रहते हैं, इतने साल हो गए, लेकिन अब मैं अपने इस बेटे को समझ नहीं पाता, क्या करूं मैं. लास्ट में वो कहते हैं, yet I have killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. अब यहाँ पे जो फादर है वो कह रहा है, लगता है कि ये जो सीड है, ये जो मैंने जो ये बीज बोया अपनी जमीन पे, लगता है मैंने ये बीज को खुद ही मार दिया. तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि जो ये मेरा बेटा है, इसकी पर्सनालिटी को मैंने ही मार दिया, मैंने ही अनजाने में इसके व्यक्तित्व को बर्बाद कर दिया. मैंने ही जब ये बड़ा हो रहा है तो मैंने ही एक ऐसा हाथ आगे नहीं बढ़ाया यह जानने के लिए कि अब इसकी इच्छाओं में क्या परिवर्तन आया.
अब इसके सपनों में क्या परिवर्तन आया, अब इसके दोस्तों में क्या परिवर्तन आया, अब इसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की। कहीं मैंने ही अनजाने में तो उस बीज को बर्बाद नहीं कर दिया जो मैंने ही बोया था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड है सीड, सोन और लैंड, ये सभी वर्ड्स मेटाफर हैं। मेटाफर होता है कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, किसी आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो सीड है या सोन वर्ड है या लैंड है, ये मेटाफर है उस हार्ड वर्क के लिए, उस मेहनत के लिए जो पिताजी ने की है इस रिश्ते को सुंदर बनाए रखने के लिए। पिताजी जो प्रयास कर रहे हैं इस रिश्ते को सुंदर बनाने के लिए, उन सब प्रयासों के लिए ये जो मेटाफर वर्ड्स यूज हुए, सीड, सोन और लैंड। सो सेकंड स्टैंजा, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। अब वो कहता हम इस घर में रहते हैं और पर हमारे बीच में कोई वार्तालाप नहीं होता, हम दोनों एक दूसरे की बातों को शेयर नहीं करते। वो अब मुझे नहीं बता रहा है कि अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अब उसका दिल क्या चाहता है, अब उसके दोस्तों के साथ उसकी क्या बातें होती हैं, अब वो ज़िंदगी में घर के अलावा किन किन जगहों में जाता है, किन किन लोगों से मिलता है, उसके क्या विचार हो चुके हैं, अब उसके क्या सपने हैं। कहता अभी हमारे बीच में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को समझते नहीं है। सो दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, यट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। अब यहाँ पे फादर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये बच्चा मेरे हिसाब से बड़ा हुआ है, जैसे मैंने चाहा वैसे मैंने अपने बच्चे को वातावरण दिया, जैसे मैंने चाहा कि मेरा बच्चा जिस प्रकार की पढ़ाई करे, जिस प्रकार के विद्यालय में पढ़े, जिस प्रकार के वस्त्र पहने, जिस प्रकार के माहौल में उसका उठना बैठना हो, यह सब मैंने चाहा और इसी प्रकार से मेरा बेटा बड़ा हुआ। लेकिन फिर भी अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्या हो गया कि अब मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, अब मैं इसके विचारों को समझ नहीं पा रहा हूँ, अब मुझे इसकी इच्छाओं का पता नहीं चल रहा है, अब मुझे इसके सपनों का पता नहीं चल रहा है, अब हमारे बीच में कोई समझ नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं हो रही है, लाइक दैट। सो हम लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते, वो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। नेक्स्ट, साइलेंस सराउंड्स अस, I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew. Now सबसे एक जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, साइलेंस सराउंड्स अस। एक तो बात करूँ यहाँ पे मैं अलंकार की, तो बच्चों अलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे एस साउंड रिपीट हो रहा है, एस लेटर रिपीट हो रहा है, स साउंड रिपीट हो रहा है। साइलेंस सराउंड अस, तो स साउंड रिपीट हो रहा है, एस लेटर रिपीट हो रहा है। जहाँ पे कोई कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है तो आप वहाँ पे अलिट्रेशन कहते हैं। अब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं फादर कि हमारे चारों तरफ शांति है, हमारे चारों तरफ एक अनोखी, एक अजीब सी शांति है। और वो शांति कैसी है कि क्योंकि हम आपस में बात नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे की भावनाओं को ही नहीं समझ रहे, मैं नहीं समझ पा रहा अब इसकी इच्छा क्या हो गई, इसके सपने क्या हो गए, ये जिंदगी में क्या चाहता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम बिल्कुल चुप हैं। इसीलिए हमारे चारों तरफ शांति है, हम दोनों शांत रहते हैं ना। अब क्या कहते हैं फादर, अभी पापा थर्ड स्टैंजा में बता रहे कि उनकी इच्छा क्या है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस। प्रोडिगल क्या होता है, जैसे पापा मम्मी कहते हैं कि बेटे जो दिल में आए तुम खर्चो, तुम परेशान मत हो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम जो चाहते हो जिंदगी तुम वो खरीदो, तुम परेशान मत होना, हमने परेशानी सही है लेकिन तुम परेशानी नहीं सहोगे। तो प्रोडिगल होता है अपने अकॉर्डिंग खर्चे वगैरह करना, और प्रोडिगल होना मतलब समझदार भी होना। दोनों ही तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा चाहता है कि उसका बच्चा प्रोडिगल बने, मतलब समझदार बने, वो अपनी समझ का उपयोग करे, अपने घर वापस आ जाए, ऐसे भी हम कह सकते हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पिताजी सोचते हैं कि उसका बच्चा घर आए और अपनी ज़िंदगी जिए और ये चिंता ना करे कि पैसे कहाँ से आएंगे। बट फिलहाल हम यहाँ पे बात करूँ तो प्रोडिगल की हम ऐसे कहते हैं, पिताजी चाहता है कि उसका बच्चा प्रोडिगल बने, मतलब समझदार बने, उसको ये समझ आ जाए कि उसको अपने पिताजी से दूर नहीं जाना, उसको अपने ही घर में रहना है अपने माता पिता के साथ। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो बेटा प्रोडिगल बने, समझदार बने और अपने पापा के घर में वापस आ जाए, उस घर में वापस आ जाए जिसको ये बहुत सालों से जानता है। Rather than see him make and move his world.
अब वो पिताजी कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये घर छोड़ के चला जाए, दुनिया में ये अपना ही कुछ घर बनाए, अलग ही घर में रहे और फिर दुनिया में संघर्ष करे, परेशान हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा समझदार बने, प्रोडिगल बने और वापस अपने घर में आए, जिस घर में वो सालों से रहता है। अब पिताजी कहते हैं, आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव। बहुत बड़ी बात यहाँ पे पिताजी कह रहे हैं। पापा कह रहे हैं, जो पॉइंट है, जो कि इस लड़के का पापा है, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। और जो हमारा ये रिश्ता इतना टूट चुका है, हमारा रिश्ता जो इतना दुखदाई हो चुका है, हमारा रिश्ता जो इतना दुख भरा हो चुका है, अब मैं चाहता हूँ कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो और इस रिश्ते में प्यार ही प्यार हो, ये रिश्ता प्यार से आगे पनपे। तो पिताजी चाहता है मैं ऐसे करने के लिए मेरा बेटा वापस आ जाए, मैं उसको माफ़ कर दूंगा, वो अपना घर ना बनाए, वो इसी घर में रहे जिस घर को वो सालों से जानता है। और ये जो हमारा रिश्ता इतना ज़्यादा दुख से भरा हुआ है, इसको हम प्यार भरे रिश्ते में चेंज करें, प्यार भरे रिश्ते में तब्दील करें। सो लास्ट स्टैंजा है स्टूडेंट्स इस पोएम का। देखिए क्या कहते हैं लास्ट स्टैंजा में। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। अभी जो कह रहे हैं मम्मी, जो पिताजी हैं और जो बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि हम दोनों को इसी धरती में रहना है। ग्लोब का मतलब हमें इसी धरती में रहना है, हमें एक ही घर में रहना है, ठीक है ना। तो फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। हम लोगों को इसी धरती में रहना है, हमें इसी जमीन में रहना है, तो हमारा घर अलग क्यों हो? मेरा बेटा मेरा घर छोड़ के अलग क्यों जाए? वो अपनी अलग दुनिया क्यों बनाए? वो इसी घर में क्यों ना रहे जिस घर को वो सालों से जानता है? He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? अब वो कहते हैं जब मेरा बेटा बोलता है कुछ भी तो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसके दिल में क्या विचारों का कैसे विचार उसको दिल में झंझोर रहे हैं, उसके दिमाग में, मस्तिष्क में किस प्रकार के विचारों का मंथन हो रहा है, उसके क्या सपने हैं, वो कहता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। पिताजी अपनी समस्या बता रहे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अपने इस पुत्र को। माई सेल्फ, वाई एंगर ग्रोस फ्रॉम ग्रीफ। कह रहा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ग्रीफ, पहले तो पिताजी को ये दुख है, ग्रीफ का मतलब दुख होता है, सोरो होता है। तो पहले तो पिताजी को ये दुख है कि हमारा रिश्ता टूट गया है। अब वो दुख की वजह से अब धीरे धीरे उनको गुस्सा आ रहा है, धीरे धीरे पिताजी का जो दुख है वो गुस्से में कन्वर्ट हो रहा है, गुस्से में चेंज हो रहा है। अब पिताजी को गुस्सा आ रहा है, इस लड़के को क्या हो गया? ये सब कुछ तो मेरे हिसाब से करता था, मेरे हिसाब से खाता था, पीता था, कपड़े पहनता था, यहाँ वहाँ जाता था, हर चीज में मेरी बात मानता था। तो अब पिताजी को गुस्सा आने लगा है। पहले दुख हो रहा था, अब वो जो दुख है वो गुस्से में परिवर्तित हो रहा है। So we each put out an empty hand, longing for something to give. हम दोनों के ही हाथ खाली हैं, हम दोनों ही आगे खाली हाथ बढ़ा रहे हैं और ये इच्छा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को माफ करें। और ये जो पिता और पुत्र के बीच में जो ये तनाव बन चुका है, जो ये शांति बन चुकी है, जो ये अनोखापन बन चुका है, ये कैसे ना कैसे समाप्त हो जाए। तो पिता कह रहे हैं कि पुत्र अगर आए तो मैं इसको माफ करूंगा और इस रिश्ते में मिठास भरूंगा। पुत्र भी यही सोच रहा है कि मैं पापा के पास जाऊं, मेरे पापा मुझे माफ करें और हमारे बीच में जो ये दुख आ चुका है, माता पिता और पुत्र के बीच में जो ये कड़वाहट हो चुकी है, इसे हम समाप्त करें। तो बेटा बहुत अच्छी पोयम है ये, क्योंकि ये दुनिया की सच्चाई बता रही है कि हकीकत में जनरेशन गैप की वजह से फादर्स के बीच में और उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनके बीच में टकराव होता है। कि पोएम का नाम फादर टू सन है, लेकिन हम यहाँ पे एक यूनिवर्सल फीलिंग बता रहे हैं कि चाहे वो डॉटर है चाहे वो सन है, उनके बीच में और उनके माता पिता के बीच में टकराव होता है विचारों का, थॉट्स का, ओपिनियंस का, व्यूज़ का। और उसका रीज़न है जनरेशन गैप, क्योंकि माता पिता के समय में माहौल कुछ और था, जमाना कुछ और था, विचारधाराएं कुछ और थी। और अब बच्चों का जो ये समय है, इनका वातावरण चेंज हो चुका है, इनका माहौल चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। इसी वजह से, इस जनरेशन गैप की वजह से पेरेंट्स के बीच में और उनके बच्चों के बीच में तनाव बना रहता है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए
अगर बेटा हम ये पोएम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चा 11th क्लास को पास करके 12th में जाता है और अगर उसने पोएम पढ़ी है तो उस बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि माता पिता और उसके बीच में जनरेशन गैप ना आए, क्योंकि माता पिता अपने जगह ठीक हैं, क्योंकि उनके समय में ये सब कुछ नहीं होता था, इसलिए उन्हें बुरा लगता है, लेकिन हम उन्हें प्यार से समझा सकते हैं। और अगर हम प्यार से किसी भी चीज़ को समझाते हैं तो रिश्ता हमारा मीठा होता है, उसमें मिठास बनती है। चलिए बेटा हम व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हैं। इसमें आप विजय मैम ने आप लोगों के लिए क्या नोट्स रखा है। सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं। तो जैसे बेटा मेटाफर मैंने आपको कहा इस पोएम में है सीड, सोन, लैंड, ये मेटाफर्स हैं और ये तीनों ही वर्ड पिता ने जो इतने मुश्किल प्रयास किए, एफर्ट्स किए, उसके लिए यूज हो रखा है। दूसरी जो लाइन है इसमें, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस। ये जो वर्ड प्रोडिगल है इसमें भी हमारा मेटाफर है। यहाँ पे प्रोडिगल यूज कर रखा है कि वो जो बेटा है वो समझदार बने और अपने घर वापस आए। दूसरा आपका एलिट्रेशन है, द सीड आई स्पेंट और सोन, दिस एस लेटर इज बीइंग रिपीटेड, सॉ साउंड रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन है, राइट, एस एंड हियर आल्सो साइलेंस अराउंड अस, एस साउंड इज बीइंग रिपीटेड। सो नेक्स्ट है आपका सिमिली, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। सिमिली जो लिटरेरी डिवाइस होता है इसको हिंदी में उपमा कहते हैं। इस लिटरेरी डिवाइस में लाइक, एज और सो वर्ड्स यूज होता है और कंपैरिजन होता है। नाउ नेक्स्ट, इस पोएम की अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम इस पोएम में क्या है स्टूडेंट्स, ए बी बी ए बी ए। आपको राइम स्कीम जरूर निकालना आना चाहिए, 1 मार्क्स का राइम स्कीम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द फादर सेज ही हैज किल्ड द सीड। तो पापा क्यों कहते हैं कि उन्होंने सीड को किल किया। फादर थिंक्स ही हैज डिस्ट्रॉयड बेसिक पर्सनालिटी ऑफ हिज सन, द सन कैन नॉट बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द फादर। पापा कहते हैं कि उसने अपने बेटे की जो पर्सनालिटी है, जो बेसिक पर्सनालिटी है, उसको ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब जो वो रिश्ता है उसको मोल्ड करना, उसको अच्छा बनाना मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज द विश ऑफ फादर। पापा की क्या इच्छा है। जैसे मैंने आपको कहा फादर वॉन्ट्स हिज सन टू बी प्रोडिगल, ही वॉन्ट्स हिज सन टू कम बैक टू हिज ओन हाउस, ही वॉन्ट्स हिज सन नॉट टू मेक हिज ओन हाउस। वो चाहते हैं कि उसका बेटा प्रोडिगल बने, अपना घर वापस आए और दूसरा अपना अलग से एक और घर ना बनाए। सो नेक्स्ट है आपका, What does seed signify? Seed का क्या मतलब है। तो the seed signified all efforts done by father to make relation better. Seeds का मतलब वो पूरे efforts हैं, प्रयास हैं जो पिताजी ने रिश्ते को और ज़्यादा प्यार भरा रिश्ता बनाने के लिए जो प्रयास किए, उन सब प्रयासों के लिए सीड्स वर्ड यूज हुआ है। मेटाफर यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What kind of relation does son and father share? सन और फादर के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। तो हम कहते हैं there is non-functional relation between father and son. Father doesn't understand the views, the desires, the longings, the wishes, the dreams of his son. They both live in the same house and yet they don't understand each other. ठीक है, इस प्रकार का रिश्ता उनके बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज फादर सैड। पिताजी दुखी क्यों है। सो द फादर इज सैड बिकॉज नाउ हिज ओन सन is not talking to him, not sharing his ideas with him, so he doesn't know anything about his son. This thing makes father more sad. पिताजी दुखी हैं क्योंकि वो अपने पुत्र को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता अपने बेटे के बारे में कि उनका बेटा की क्या इच्छा है, क्या सपने हैं, क्या विचारधारा है। एक इस पोएम में एक आयरनी है। आयरनी क्या होता है। आयरनी होता है अपोजिशन, कॉन्ट्राडिक्शन। जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो हम उसको आयरनी कहते हैं। आयरनी बेटे व्यूज में हो सकता है, विचारों की आयरनी हो सकती है, सिचुएशन में आयरनी हो सकती है, कैरेक्टर्स में आयरनी हो सकती है। सो यहाँ पे आयरनी क्या है कि इतने सालों से अगर हम साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं, होना ये चाहिए। लेकिन अब इस पोएम में आयरनी क्या है कि इतने सालों से पिता और पुत्र साथ में रह रहे हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को नहीं समझते। अब यहाँ पे आयरनी सिचुएशन की है, रिलेशंस की आयरनी है कि पिताजी और पुत्र का जो रिश्ता होता है वो एक आत्मा और एक शरीर का रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ पर पिता पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानता, तो ये आयरनी है। वो जिस घर में इतने सालों से रह रहे हैं, इतने सालों से रहने के बावजूद पिताजी पुत्र को नहीं समझता, ये आयरनी है। सो आयरनी मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, ठीक है। विरोधाभास हो सकता है व्यक्तित्व में,
पर्सनालिटी में, सिचुएशन में, अवस्थाओं में, राइट। सो कैरेक्टर्स में भी हो सकता है। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इस पोएम का मैसेज क्या है? सो दिस पोएम give us wonderful message that relations are very precious. It takes years to build good relations, but seconds to break them. Hence, respect and love our relations. बहुत बड़ी बात यहाँ पे हमें पता चलता है, इस पोएम का इतना सुंदर मैसेज है कि जो रिश्ते होते हैं ये बहुत ज़्यादा अनमोल हैं। सो रिलेशंस आर वेरी प्रेशियस, रिश्ते बहुत ज़्यादा अनमोल हैं और रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं। इट टेक्स मेनी ईयर्स टू बिल्ड अ गुड रिलेशन बट सेकेंड्स टू डिस्ट्रॉय दैम। लेकिन रिश्तों को बर्बाद करने में सेकंड्स लगते हैं और इन्हीं रिश्तों को आबाद करने के लिए सालों गुजर जाते हैं। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और रिलेशंस की इज्जत करनी चाहिए, रिलेशंस की कदर करना चाहिए और रिलेशंस से हमें प्यार होना चाहिए, हमें रिश्तों से प्यार होना चाहिए, हमें रिश्तों की केयर होनी चाहिए। तो बेटा, ये जो पोएम फादर टू सन बहुत ही अच्छी पोएम है, ज़िंदगी के लिए भी बहुत ही अच्छी पोएम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग जनरेशन गैप बीच में ना आने दें और अभी हम माता पिता हैं तो हम अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, वो जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में वो लोग आगे बढ़ें और हम उनका साथ दें। यही बात मैं बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि बच्चों को भी अपने माता पिता के अनुसार उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जनरेशन गैप तो है। जो चीज़ें 10, 15, 20 साल पहले थी अब वो नहीं है। तो विचारों में परिवर्तन होगा, आशाओं में परिवर्तन होगा, सपनों में परिवर्तन होगा, लेकिन एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे का साथ दे के हम इस जनरेशन गैप से आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं। थैंक यू।